स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से मंगलूर चलो अभियान। बीजापुर में बीजेपी की तरफ से मंगलूर चलो अभियान के तहत आज बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए रवि खानापुर ने बताया कि 7 सितंबर को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के 5 जिलों से बाइक रैली के जरिए मंगलूर पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बृहत समावेश करेगी। राज्य की कांग्रेस सरकार पर केएफडी एसडीपीआई पीएफआई का समर्थन करने का इल्जाम लगाते हुए रामनाथ राय पर कार्रवाई करें। पिछले कई महीनों से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ ये मंगलूर चलो अभियान किया जा रहा है। ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೋಮು ದಳ್ಳೂರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಘಟಕ ಬರುವ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ 5 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅದರ ನಂತರ ಅವತ್ತೇ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ನಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। 6ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಸುಮಾರು 1,500 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಅದೇ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಬೈಕ್ಗಳ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ। ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ 5 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 2,000 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಸುಮಾರು 2,500 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 10,000 ಬೈಕ್ಗಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 5 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PFI ಮತ್ತು KFDಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯುವಕರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು KFD ಮತ್ತು PFI ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮುದಳರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಘಟನೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಹಿಂದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನದು ಹಿಂದೂ ಪರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. मगरमच्छ को पकड़ने के लिए प्रशासन लगा रहा है पूरा जोर। बी न्यूज़ नेशन में मगरमच्छ के होने की पुष्टि के बाद प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी फौरन हरकत में आकर मशीनरी के साथ मगरमच्छ को पकड़ने में पूरा जोर लगा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये काम शुरू है, अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है कि कब इस मगरमच्छ को पकड़ने में प्रशासन कामयाब होगा। ऐतिहासिक बड़ी बॉडी पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है, आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। We have found one crocodile in city area, so we are trying to capture this crocodile with the help of our staff, forest department staff, and with the help of Narika US Sangha leading man Amir Ullur, then the area corporator sir, and with all the cooperation from all the people of this area. We are because the area is having water here, so it is difficult to capture the crocodile with this water, but at any cost we have to capture this water because the presiding area is having the houses, and there are small children are playing in and around this area. So we need to capture this crocodile at any cost. So we are trying. Alternatively, we are removing the this Prosophis juliflora and clearing the all the jungle trees, this PJ trees, so that we can have clear-cut area, because the crocodile won't move in that area having the thorns and all. So we are clearing that area, and we are planning to keep the cage in that area, so that we are using some food for the meat and all, for some food for the crocodile, and we are able to capture that crocodile with the help of this cage trap. अभी एक 4-5 दिन से उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं रूपा मैडम भी, और उनके स्टाफ भी पूरे यहाँ से, और हमारे अच्छे कमिश्नर उन्होंने भी बेचारे एक आधे घंटे को 10-15 मिनट को एक बार प्रोसेस में है, उन्होंने भी हमारे साथ लिंक में भी टच में भी, क्या भी हमारा जरूरत पड़ी तो भी ताप से इमीडिएटली हमारा मोटर भी और JCB जो हम चीज़ मांगते हैं वो हमारा हेल्प भी कर रहे हैं। पिछले 3 या 4 दिनों से ये प्रोसेस चला हुआ है कि KHB कॉलोनी वार्ड नंबर 20 में जो बड़ी बूढ़ी है वहाँ पर मगरमच्छ को देखा गया, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बी न्यूज़ ने इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पर जो मगरमच्छ है, और उन्होंने हमने जो है न्यूज़ भी बताया, और आज जो है कारपोरेटर के सहयोग से तो तमाम
डिपार्टमेंट को बुलाया गया है, रेंज ऑफिसर्स यहाँ पर आए गए हैं और इसके अलावा जो और कई महानगर पालिका के भी इंजीनियर यहाँ पर आए हुए हैं और बावड़ी में से पानी निकालने का काम शुरू है। और जेसीपी से जो है बावड़ी के चारों तरफ जो है जो कंटियाँ काटे उठे हुए हैं उसको भी साफ किया जा रहा है और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस मगरमच्छ को इस बावड़ी से बाहर निकाला जाए। और यहाँ के लोगों में एक आतंक है, डर है कि यहाँ के कब ये मगरमच्छ बाहर आएगी, हमारे बच्चों को या हमें जानी नुकसान होगा। तो यहाँ के लोगों से ही इसके बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है कि डर है, खौफ है कि मगरमच्छ को अभी नहीं निकाला गया है पानी में से? नहीं, कोशिश पूरी चल रही है निकालने की। बहरहाल मोहल्ले में पूरी गली में डर का एक दहशत का माहौल पैदा हुआ है बच्चों में, क्योंकि उसमें कंपाउंड बना हुआ नहीं है, बावड़ी खुला है एकदम। अबे किसी बच्चे को खींच के ले गई तो किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मेंबर हमारे यहाँ के दराक्षी हैं, अनवर नाम उनका, वो उन्होंने एक हफ्ते से लगे हैं उसके पीछे, काम पूरा कर रहे हैं। सब म्यूनसिपाल्टी को और तुम्हारे मीडिया वालों को, फॉरेस्ट ऑफिसर को, सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं। सभी उनके साथ में आए, सबको बुलाए उन्होंने। अभी देखो आगे क्या करने वाले हैं। जेसीबी मशीन भी चल रही है, मोटर भी लाए हैं, म्यूनसिपाल्टी की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। थोड़ा बहुत तो डर महसूस होता है क्योंकि पहली बार देख रहे हैं, इतनी बड़ी है वो 6 फुट, लगभग 5 या 6 फुट की है। हाँ, आँखों से देखा हुआ है, हम देखते रहते हैं और आजू बाजू जाने वाले बच्चों को भी बताते रहते हैं कि मत जाओ उधर, क्रोकोडाइल है उधर बोल के। वो शाही जमान की बावड़ी भी है। बावड़ी के अतराफ जो है बिल्कुल कांटों से भरा हुआ झाड़ी लगी हुई है और आज सुबह से जो महानगर पालिका की ओर से इस झाड़ियों को हटाने में लगा हुआ है। जेसीपी का काम शुरू है और बड़ी तादाद में भी यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और जेसीपी की मदद से जो है तमाम कांटों को हटा दिया जा रहा है ताकि इस मगरमच्छ को पकड़ने में आसानी हो। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो बड़ी बावड़ी है, ये बड़ी बावड़ी जो है सेंट्रल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया यानी ASI के अंडर में आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और जेसीपी की मदद से पूरा काम किया जा रहा है और एक केज भी लाया गया है जिसको जो है पानी में रखा जाएगा और पानी भी खाली करने के लिए मोटर्स लगाए हुए हैं। कॉर्पोरेटर का और यहाँ के प्रशासन का यही काम है, यही कोशिश है कि जितना हो सके जल्दी इस मगरमच्छ को इस पानी से निकाला जाए। कोई भी हादसा होने से पहले इस मगरमच्छ को पानी से निकाला जाए। और जो लोग आतंक में हैं, यहाँ पर डरे हुए हैं, आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, बच्चे महिलाएं सभी इसी बावड़ी के अतराफ आते हैं। लोगों में एक डर है, दहशत है। तो प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि जल्द से जल्द इस मगरमच्छ को निकाला जाए। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।